شبیر بھائی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پر کہ جو کام لائن ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں، میں جو ہمارے حکمران صاحبان کو بھی بتا دوں کہ روڈ کا تمام کام لائن ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں. بجلی کا تمام جو مشکل کام ہے وہ لائن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. صحیح، کیونکہ 50,000 آپ لوگ ہیں، 1,000 وہ ہیں، تو آپ ہی کام کرتے ہیں. پانی کا جو کام ہے سارا وہ لائن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. ایک سیکریٹریٹ کے اندر جو ہمارے سیکریٹریٹ والے بھائی ہیں، ان کا جو ایس او ہے وہ 2,23,000 روپے مطلب یعنی اسی سروس کے ساتھ دیتا ہے. اسی سروس کے ساتھ میں اسی سروس کے ساتھ یہاں پہ 70,000 لے رہا ہوں. یعنی اس وقت عدلیہ کا ایک چپراسی جو ہے وہ ہمارے 16 سکیل کا جو ایک بندہ فریش اپائنٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ تنخواہ وہاں پہ مطلب عدلیہ کے ایک چپراسی کی ہے. جو ریسنٹلی ہماری جو حکومت ہے، یہ جو حکومت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سوچ سے کہیں بہتر، سوچ سے کہیں بہترین بلکہ نا، جو سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی ہمیں دی ہوئی تھی جن میں 3 ہمیں منسٹرز دیے تھے. الحمدللہ تینوں بہت سمجھدار اور بہت بہترین ہمارے ایشوز کو سمجھنے والے، بہت پڑھے لکھے ہمیں منسٹرز دیے. السلام علیکم. آئمن کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اجلال حسین اور مبارکہ گل. دونوں مہمانوں کا تعلق آل لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن گلگت بلتستان سے ہے، اور اجلال صاحب صدر ہیں اور مبارکہ گل جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں. ناظرین، کافی عرصے سے آپ نے جو امپلائیز آل لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن کی جو مختلف ہڑتالیں اور احتجاج اور خبریں یقیناً آپ نے دیکھی اور پڑھی ہوں گی، اس سلسلے میں آج انہی کے ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے. میں خوش آمدید کہتا ہوں اجلال صاحب اور مبارکہ صاحبہ آپ کو. مبارکہ صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ تقریباً مجھے جو جہاں تک یاد پڑتا ہے سال ہو گئے ہیں، مطلب سالوں سال تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ سال ہو گئے آپ کی یہ سٹرگل چلی آ رہی ہے اس گورنمنٹ میں. اس سے پہلے کہ ہم اور ایشوز کے اوپر بات کریں، مجھے مختصراً یہ بتائیے کہ موجودہ گورنمنٹ کیسا رسپانس ہے اس کی طرف سے آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا تھینک یو، آپ نے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. میں لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسیشن، اس ایسوسیشن کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو بیک کی ہسٹری بتا دوں. یہ 2017 سے اپڈیٹ ہے جو تمام ملازمین کے لیے کام کر رہا تھا، اور اس پہ پورا ہم لوگوں نے اسٹرگل کیا. پھر موٹیویشنل ہمارے پروسیجرز چلتے رہے، پھر ہم ایشوز کے اوپر چلے، پھر ہماری میٹنگز ہو گئی. جا کے ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا جو تمام ملازمین کی طرف سے تھا. تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے ایشوز کو لے کے ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا، اور پریویس جو حکومت تھی اس نے اس کو ریکمنڈ کیا تھا چیف سیکرٹری کے لیے، اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیے. جو پچھلی جو حکومت تھی وہ بہت مختصر عرصے کے لیے تھی جب ہم نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا. جو ریسنٹلی ہماری جو حکومت ہے، یہ جو حکومت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سوچ سے کہیں بہتر، سوچ سے کہیں بہترین بلکہ نا، جو سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی ہمیں دی ہوئی تھی جن میں 3 ہمیں منسٹرز دیے تھے. الحمدللہ تینوں بہت سمجھدار اور بہت بہترین ہمارے ایشوز کو سمجھنے والے، بہت پڑھے لکھے ہمیں منسٹرز دیے. ہم نے یہ امید تو ابھی تک نہیں رکھا تھا کہ سیاستدان اتنے سمجھدار بھی ہوتے ہیں. تو لائن ڈپارٹمنٹ کے جتنے ایشوز تھے ان لوگوں نے بہت گہرائی سے سمجھا اور ہمیں امید دلائی ہے کہ ہمارے ایشوز کو پورے نہیں کر سکے تو آدھے ہمارے ایشوز حل. کتنی آپ کی ان کے ساتھ میٹنگز ہو گئی ہیں؟ ہماری ابھی تک 4-5 ان کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں. 4-5 میں ہم نے ہر جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے ان میں ہم نے بہتر سے بہترین پایا ہے. ٹھیک ہے. اجلال صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ایشوز بنیادی طور پر کیا ہیں یا مطالبات کیا ہیں جو آپ اس گورنمنٹ سے بھی اور اس گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں؟ میرے صاحب بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں آئی ویکس میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیں بلایا اور ہماری سنی. اس میں ہمارا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ایشوز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ایشوز یہی ہیں کہ جو سیکریٹریٹ اور آل لائن ڈپارٹمنٹ کے درمیان جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کہتے ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ ان میں سب سے پہلا جو ہے ایشو یہی ہے کہ یوٹیلیٹی الاؤنس اس میں آتا ہے
इंसेंटिव्स है, उसमें एग्जीक्यूटिव अलाउंस है, होस्ट हायरिंग अलाउंस है, टाइम स्केल है। तो ये हमारे इश्यूज़ हैं जो हमने मतलब चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के सामने भी पेश किए थे थ्रू अपने सीएम के रिकमेंडेशन लेटर के। तो वहाँ फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात भी हो गई और चीफ सेक्रेटरी ने हमें यकीन दिलाया कि मतलब आपके इश्यूज़ के ऊपर इंशाअल्लाह इसको इम्प्लीमेंट कराने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे उन नाज़रीन के लिए जिनको ज़्यादा शायद वाकफियत ना हो, ज़रा बताना पसंद करेंगे कि मराआत की जब हम बात करते हैं तो एक गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर आप हैं, कोई भी एक जो लाइन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, लेट सपोज 17 स्केल का है, उनके मराआत में और सेक्रेटरीट के मुलाजिम के मराआत में कितना डिफरेंस है? मेरे साहब मैं आपको ये बताऊं कि ग्रेड 17 के और सेक्रेटरीट के 17 के दरमियान जो मराआत के एतबार से जो डिफरेंस पाया जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। मिसाल के तौर पर 10,000 का है। मसलन आप मिसाल ले लें कि मैं 17 ग्रेड का हूँ, ठीक है। अब मेरी सर्विस जो है वो 34 साल है, 34 साल है। तो एक सेक्रेटरीट के अंदर जो हमारे सेक्रेटरीट वाले भाई हैं, उनका जो एसओ है वो 2,23,000 रुपये मतलब यानी इसी सर्विस के साथ लेता है, इसी सर्विस के साथ। मैं इसी सर्विस के साथ यहाँ पे 17,000 ले रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना वास्ट डिफरेंस है सैलरीज के अंदर। अच्छा, ये क्यों ऐसा हुआ है वैसे? क्योंकि आप दोनों तो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, एक ही कानून लागू होता है, एक ही आइन के नीचे ये सारा कुछ होता है, ये डिफरेंस क्यों है? मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंस जो है सैलरीज के अंदर पैदा क्यों हुआ, सवाल ये है। तो इस पे मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंस जो है वो सैलरीज के अंदर इस वजह से पैदा हुआ कि उनके एडिशनल अलाउंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। वैसे तो आपको पता है, आप बखूबी इल्म रखते हैं इस हवाले से कि सैलरीज पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो आर्डर है और जिस पोस्ट के अगेंस्ट आर्डर मतलब यानी निकाला जाता है, उसमें उनके मैकेनिज़्म के एतबार से तमाम मतलब यानी सैलरीज जो है वो उनका पहले से मैकेनिज़्म बना हुआ। लेकिन सैलरीज इंक्रीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वक्तन फवक्तन जो मतलब यानी इंक्रीज कर रही है, वो तो सबके लिए हो रहा है, वो सबके लिए हो रहा है। ये नहीं कि मतलब सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के लिए हो रहा है, लाइन डिपार्टमेंट के लिए नहीं हो रहा है, वो जनरली सबके लिए है। लेकिन हमारे और उनके दरमियान, और फिर मैं यहाँ बात करूँ अदलिया भी, आप ये ले लें कि सेक्रेटरीट, अदलिया प्लस लाइन डिपार्टमेंट जो हैं, इनके सैलरीज में आप यानी फ़र्क निकालेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी इस वक्त अदलिया का एक चपरासी जो है वो हमारे 16 स्केल का जो एक बंदा फ्रेश अपॉइंट होता है, उससे ज़्यादा तनख्वाह वहाँ पे मतलब अदलिया के एक चपरासी की है। अब आप लाइन डिपार्टमेंट के एक चपरासी की बात करें तो उसका और सेक्रेटरीट के जो हमारे मतलब इदारा है उनके मुलाजिम के दरमियान आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको बखूबी इल्म होगा कि हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट का चपरासी है उससे तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये वहाँ का चपरासी ज़्यादा लेता है। क्यों? इसकी बेसिक जो है, इसकी बेसिक और उसकी बेसिक तो बिल्कुल इक्वल है। अच्छा, बेसिक जो है, जो बेसिक तनख्वाह है उनकी इक्वल है, लेकिन उसके ऊपर जो मतलब एडिशनल अलाउंसेस लग रहे हैं, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस में तो चपरासी मतलब यानी उस एम्बिट में आता नहीं है, तो बाकी मतलब इंसेंटिव्स में वो चपरासी ले रहा है। आप अंदाज़ा लगाए कि उस इंसेंटिव में 9,000 रुपये हैं जो इस लाइन डिपार्टमेंट का चपरासी उससे महरूम है। मुबारक साहब, ये बताइए कि ये जो मराआत देने का इख्तियार है किसके पास है? मराहत अक्सर यही होता है कि जब कवानीन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रोविंस में, तो सबसे पहले ये होता है कि आपका जो प्रोविंशियल आपका जो सेटअप है, आपकी हुकूमत है, वो कैबिनेट के अंदर हमारे इश्यूज़ को डिस्कस होता है। जब ज़रूरत पड़ती है कि उस पर हमें देने की, वो अगर चाहें तो वो हमें हमारे लिए कानून बना सकते हैं, हमें दे सकते हैं। प्रोविंशियल हुकूमत को जब, जैसा कि आपको एक मिसाल दे दूं, जैसा 25% की अभी बात हो रही है जो अभी हमें देने जा रहे हैं, तो वो ये था कि जितने भी हमारे पीएम साहब ने
कहा था कि तमाम प्रोविंसेस के सीएम्स को ये हम इख्तियार देते हैं कि जितने भी तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन हैं उनको 25% दे दिए जाए। तो यहाँ का हुकूमत इतना इख्तियार रखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा होने लगते हैं, मुलाजमीन में जो डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं, तो यहाँ की हुकूमत अक्सर ऐसे क़वानीन पास करती हैं और ऐसे तमाम अपने मुतासिर मुलाजमीन को फैसिलिटेट करते हैं। जैसा कि इसको आपको एक मिसाल दे दूँ, प्रीवियस जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने ये जो हॉट एंड कोल्ड का एक इशू था, तमाम मुलाजमीन में थोड़ी सी डिफरेंस आ रही थी, तो उसने एक कानून को दोबारा रीस्ट्रक्चर किया। जो हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब थे उसने कहा कि तमाम मुलाजमीन को हॉट एंड कोल्ड में बराबरी दी जाएगी। तो हमारा डिमांड भी यही है कि यहाँ पर जैसा कि यूटिलिटी अलाउंस है, जैसा कि इंसेंटिव अलाउंस है, जो तमाम 16 से बिलो कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हैं यहाँ पर, उनके लिए कवानीन यहाँ पर बैठ के यहाँ की ज़रूरत को महसूस करते हुए हम इस जो हमारी हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, इसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे इश्यूज़ जो हमारे दरमियान कुछ ज़्यादा ही मुतासिर कुन है उन पे नज़रसानी करेंगे और हमारे लिए उनके पास इख्तियार है। ये इशू तो बहुत पुराना है ना, क्योंकि बहुत पुराना है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये इशू मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन साल इसको लगे हैं। तो ये क्या वजह है कि आपकी जो एसोसिएशन, जिसमें बेशक आप ना भी हों, तो कोई कोर्ट का आपने रुख किया, कोई अपील की, कोई केस दायर किया इसके खिलाफ? आप असल में ये हुआ कि ये तारीख़ की सबसे बड़ी तहरीक है जो अभी बनी है। तो जैसा कि आपको पता है ना, महकूम जितना होता है उसके पास इतना पावर नहीं होता कि वो जाके जो आला हुकाम है उनके सामने बात करें। ये वाहिद एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन है जिसने बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करते हुए इन तमाम लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए एक ऐसा तहरीक बनाया जो अभी अपना आवाज़ उठा रहा है कि हमारे दरमियान क्या क्या इशूज़ हैं। 3 साल गालिबन हुए हैं। हाँ, 3 साल हमने बहुत बेहतरीन स्ट्रगल किया। इस पे हमें अदालत भी कुछ मसाइल के लिए जाना पड़ा। अच्छा। ये हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो अदालत का मसला नहीं है। अच्छा, अदालत का इसमें कोई इतना सरोकार नहीं है। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारे लिए हमसे एनोलॉजीज़ मांगते हैं। एनोलॉजीज़ ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोविंसेस, आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उनके एनोलॉजीज़ भी हमने सबमिट किया हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हमारे जितने चार्टर ऑफ डिमांड के 6 जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पे हमारी जो हुकूमत है वो गौर करेगी। ठीक है। इजलाल साहब, इस एसोसिएशन में, जीबी में कितने एम्प्लॉइज़ हैं टोटल मिला के? हमारे जीबी के अंदर ऑल लाइन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका एग्जैक्ट फिगर हमारे पास है। अच्छा, एग्जैक्ट है जो 49,886। अच्छा, हाँ, 49,886 तकरीबन 50,000। और सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन और सेक्रेटरीट के आप 1,000 उनसे मतलब वो भी मिला लें तो 51,000 हो गए। अच्छा, तो मतलब इसमें असल बात यह है कि 49,886 एम्प्लॉइज़ जो ऑल लाइन डिपार्टमेंट के हैं उनको इसी वजह से महरूम रखा जाता है कि इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ आप सेक्रेटरीट के जो हमारे भाई हैं, ठीक है कि नहीं है, वो 1,000-1,200 के लगभग मतलब उनकी तादाद है। तो उनको जो बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट वो इस वजह से दे रही है कि मतलब इनका स्ट्रेंथ कम है। तो ये किसी स्टैट्यूट में ये चीज़ लिखी हुई नहीं है या किसी कानून की किताब में ये लिखी हुई नहीं है कि जहाँ पे एम्प्लॉइज़ की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो वहाँ पे आप बेनिफिट्स उनको दे दें और जिनके स्ट्रेंथ ज़्यादा हैं उनको बेनिफिट से महरूम कर दें। ये कोई कानून नहीं है, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तनख्वाहों के अंदर तजाद इसी को कहते हैं, मराद के अंदर तजाद इसी को कहते हैं। हम जो ऑल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के जो सदूर हैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी साहिबा हैं हमारा, और ये हम सारे मिल के जो फाइट कर रहे हैं वो इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। ठीक है। सर्विस रूल्स और सर्विस स्ट्रक्चर्स की बात हो रही थी, वो तो आपकी नहीं बनी हुई है, सर्विस रूल्स हैं। इसमें यह है कि ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो तहरीक है अच्छा, इसका कोई हिस्सा नहीं है।
इसका कोई हिस्सा नहीं है। अलबत्ता हमारी जिम्मेदारी में ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ना हो, रूल ना हो, तो फिर कैसे फिर प्रमोशन होगी? किस अगर किसी इदारे के अंदर रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हुए, रिक्रूटमेंट रूल्स ये हैं कि उनके प्रमोशंस जो हैं ये सारे का जो मैकेनिज़्म बनता है ये इसी क्राइटेरिया के तहत मतलब यानी बनता है। आप फ़र्ज़ करें कि मतलब किसी की लाइन ऑफ प्रमोशन में ये हमने भी डिमांड किया है यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर भी ये चीज़ है कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी की लाइन ऑफ प्रमोशन नहीं है तो उसको टाइम स्केल दिया जाता है। टाइम स्केल प्रमोशन कहते हैं। रिसेंटली आपने कोई सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन भी पढ़ी होगी, इसमें एक चीज़ हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो बड़े हैं ब्यूरोक्रेट्स कहें उनको कि वो समझते नहीं हैं, अपग्रेडेशन को लाकर उन्होंने टाइम स्केल के साथ जोड़ दिया। हालांकि अपग्रेडेशन एक अलग चीज़ है, टाइम स्केल अलग है। अब मिसाल के तौर पे टाइम स्केल आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही, लेंथ ऑफ सर्विस मेरी 5 साल हो गई, आगे लाइन ऑफ प्रमोशन मेरी है नहीं, तो आप यहाँ की मुझे टाइम स्केल, वहाँ पे टाइम स्केल भी नहीं है, यहाँ पे टाइम स्केल भी नहीं है। टाइम स्केल का मतलब ये है कि ये भी समझने की कोशिश की जाए कि टाइम स्केल के अंदर वो आदमी बाकायदा मतलब यानी आगे उसमें नहीं जाता है, बल्कि ओहदा उसका वही रहता है और उसका ग्रेड जो है स्केल अप हो जाता है, उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, हमारे इधर मुबारक साहब क्या करने जा रहे हैं फर्दर, क्या आपका प्लान है? फर्ज करें अगर गवर्नमेंट फिर से डिले करती है, क्या करेंगे आप? हम उम्मीद रखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो हमें मिनिस्टर्स का जो हमें कमेटी दिया हुआ है, हमने अच्छा खासा वर्कआउट किया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट हमसे फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन मांग रहा था, तो ये काम फाइनेंस का था बेसिकली, जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन दे दे और एक समरी की सूरत में कैबिनेट तक पहुंचाए। तो फिर भी हम लोगों ने जो कैबिनेट के हमारे एसोसिएशन के कैबिनेट के मेंबरान हैं, हम सब ने मिल के फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन बना के सब कुछ करके मिनिस्टर्स के साथ बैठ के, जो हमारे कमेटी में है, फाइनेंस के सेक्रेटरी भी थे, हम उम्मीद फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से भी करते हैं क्योंकि उनका भी अच्छा हमारे साथ इन मीटिंग्स में रोल रहा है। उन लोगों ने हमें बहुत उम्मीद दिलाई है, जो हमारे मिनिस्टर्स थे, जो सीएम साहब की तरफ कोई से। आइडिया आपको है कि फर्ज करें ये आपके मुतालबात पे अमल दरामद करते हैं तो कितना बजट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा? उसमें ये है कि हमने जो क्वार्टरली एक बजट उनको दिया हुआ है, जैसा कि 25% हमें रिसेंटली देने जा रहे हैं। अच्छा। जो 3 मंथ्स के लिए हमें इस टाइम से 2017 के बेसिक पे ये लोग हमें दे रहे हैं। उसमें ये है कोई कितने करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है, कोई 3 अरब रुपए साल के होते हैं। अच्छा। जो हमारे जो 25% का है। इसी तरह यूटिलिटी अलाउंस के भी कुछ पैसे हैं, तो हम कहते हैं कि जो 25% तो हमें वफाक ने दिया था, ये हमारी डिमांड में तो थी नहीं, लेकिन हमारे चार्ट ऑफ डिमांड में जो यूटिलिटी अलाउंस है, जो टाइम स्केल है, उनके लिए हमें ये जो हमें कमेटी दी गई है वो स्ट्रगल करे और हमें भी कोशिश करे, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को नवाजा जा रहा है, जैसे उनके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, इसी तरह लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए भी मांगे जाके। क्योंकि शब्बीर भाई, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि जो काम लाइन डिपार्टमेंट करते हैं, मैं जो हमारे हुक्मरान साहिबान को भी बता दूं कि रोड का तमाम काम लाइन डिपार्टमेंट वाले करते हैं, बिजली का तमाम जो मुश्किल काम है वो लाइन डिपार्टमेंट करता है। सही, क्योंकि 50,000 आप लोग हैं, 1,000 वो हैं, तो आप ही काम पानी करते हैं। का जो काम है सारा वो लाइन डिपार्टमेंट करता है। जैसा कि सेक्रेटेरिएट का एक फैसिलिटेट बंदा, जिसको लाइट मिलती है, जिसको एसी मिलता है, वो सारा लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन है, जो ठंड में, जो गर्मी में अपने जान की भी बाजी लगा के वो लोग काम करते हैं। ये सब इश्यूज को समझ के हम डिमांड करते हैं कि वेरी क्विकली क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट में भी तो कोई एहतसाब है, कोई पूछ है ना? अब ये जो रूल बनाने वाले हैं, जिन्होंने आपको आपके साथ इम्तियाजी सलूक रखा है, जो भी है माजी में है, क्या उनसे भी कोई पूछ गछ कभी होगी? क्या कोई सवाल होगा कि भाई आपका ये काम था, आपने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम है? इसका तो अब जैसे करप्शन के हवाले से आपको पता है कि नेब का इदारा है, तो ऑडिटर जनरल है, वहीं पूछ सकता है। इनसे अदालतें हैं हमारी, जो मैं यही कहूँगा, ये हमारी मौजूद अदालत है और जज साहिबान हैं। मैं अमूमन अपनी तकरीर के अंदर भी मैंने ये कहा है
کہ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ انصاف عدالت تک محدود نہ رکھیں, اس کو تھوڑا سا باہر بھی لے آئیں. باہر لوگوں کے ساتھ مطلب ناانصافی ہو رہی ہے, بٹوین ملازمین اور اداروں کے درمیان تنخواہوں کے اندر تضاد کے اندر کتنی ڈسکرمنیشن ہے, اس کا سو موٹو ایکشن لیا جائے, یا مطلب یعنی ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں. بہت شکریہ اجلال صاحب, بہت شکریہ. مبارک قبول صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.